I hope you are done with the complex number class that we discussed in the last video. So the two classes that we have seen so far, fraction and complex number, they were relatively very simple classes. The only data that they had to store was basically two numbers. So fraction had to store two numbers, a by b, the numerator and denominator. Complex number had to store the real part and the imaginary part. So I want us to create two more classes before we end this lecture. So the first one I'll be creating and the second one you will be creating. They are again very similar, the way fraction and complex number were similar. So I'll be doing the first one and I'll show you how to do it. The second one I want you guys to do it by yourself. Great. So what is the class that we want to build? So we have already seen that when we want to store a lot of data, क्या use करते हैं हम? जब मेरे को 10 integer चाहिए, तो हम क्या use कर लेते हैं? हम array use कर लेते हैं, right? We use an array. So how do we declare an array? The way we declare an array is so we get a 10-sized array, integer array. Now, the only problem with using arrays is you need to tell the size beforehand. Size बताना पड़ता है. 10 साइज का चाहिए, 20 साइज का चाहिए, जितने भी साइज का चाहिए वो पहले बताना पड़ता है. Then you start using your array. बट तुम कहीं पर भी बीच में साइज चेंज नहीं कर सकते. ये 10 साइज का है ना, तुम इसको 20 साइज का नहीं बना सकते, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते. The array that you got is going to stay 10 sized. So what if I don't know how many elements I want to store initially? Let's say I'm building a shopping cart. You don't know how many elements the customer is going to put in your shopping cart. Restriction थोड़ी लगाएंगे, 10 ही डाल सकता है. कोई खरीद रहा है 15 चीजें तो खरीदने देंगे ना उसको. 10 पे restriction क्यों लगाएंगे? So you basically want a way to store data कि जैसे हम डालें चीजें डलती रहें उसके अंदर एंड जैसे ये स्पेस खत्म हो जाए हमारे पे रिस्ट्रिक्शन ना हो कि और नहीं डाल सकते. ये somehow अपने आप मैनेज करे और स्पेस ले या जो भी करे एंड हमारा डेटा हम और भी उसमें डाल सके. ओके, we'll build a class to do this. Basically what I want is I want to make a class called dynamic array, which will be very similar to the way arrays work, but I am not going to give any size. I'm just going to say, hey, I need a dynamic array. And when I start putting elements into my dynamic array, it should automatically resize, it should automatically find space to put my data. I should not have to worry about that. ठीक है, so मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरे को डायनेमिक एरे चाहिए और वो अपने आप उसमें चीजें अपने आप डेटा उसमें वो डाल सके. So how can we achieve that? How do we get there? A very standard way of implementing a dynamic array is, let's do one thing. Our dynamic array internally will store data inside a normal array. एक नॉर्मल एरे होगा और वो उसमें डेटा स्टोर कर लेगा. लेट्स से हम शुरू करते हैं 5 साइज के एरे से कि भाई हमारे पास 5 एलिमेंट रखने की जगह. यूजर पहले 5 एलिमेंट डालेगा, डाल देंगे अपने एरे के अंदर. 5 एलिमेंट डल गए. अब यूजर कह रहे हैं छठा एलिमेंट डालना है, तो हम क्या करेंगे? छठा एलिमेंट यहाँ पे तो डल नहीं सकता बिकॉज ये एरे तो खत्म हो गया है ना. यू कांट पुट इट हियर, ये एरे तो खत्म हो गया. We will create a new array, let's say of size 10, copy these 5 elements here, put the 6th element that you wanted to put at this position and you still have 4 more spaces where you can put new elements. फिर अगर मान लो 10 भी भर गए, अब यूजर अगर 11th डालना चाहता है तो यहाँ तो डाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम एक 20 साइज का एरे बनाएंगे, इन 10 को यहाँ कॉपी करेंगे and so on. 11th को यहाँ पे रखेंगे and we'll still have 9 more spaces to put our data. Okay? समझ में आ रहा है? So मेरी जो dynamic array class होगी वो internally data array में ही store करेगी. बस वो जो array है अगर वो fill हो जाएगा तो dynamic array क्या करेगा? एक नया array बनाएगा और उसको internally store कर लेगा. ठीक है? So let's look at how we want to use our dynamic array.
हम यूज कैसे करना चाहते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने बोला है डायनेमिक एरे D इज इक्वल्स टू न्यू डायनेमिक एरे। जस्ट लुक एट दिस लाइन। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डायनेमिक एरे, न्यू एरे विच इज नॉट द इनबिल्ट जो स्टैंडर्ड एरे होता है। हमने अपनी क्लास बनाई है कुछ, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। मैंने साइज नहीं बताया ना, मैंने कोई साइज नहीं बताया उसको इनिशियली, बस मेरे को एलिमेंट डालने में डाल पा रहा हूँ। सो क्या क्या फंक्शन है, एक तो हमें ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी साइज इनपुट फ्रॉम अस। एक हमने ये ऐड फंक्शन बनाया है। भाई शुरू में हमारा डायनेमिक एरे एम्प्टी है, सो पहली बार जब हम ऐड करेंगे वो 0th पे डाल देगा, फिर हम ऐड करेंगे वो 1 पे डाल देगा, फिर हम ऐड करेंगे 2 पे डाल देगा। सो ऐड बेसिकली एड्स टू द एंड। जितना भी डायनेमिक एरे भरा हुआ है, पीछे एक और एलिमेंट, पीछे एक और एलिमेंट, पीछे एक और एलिमेंट, सो ऐड ये करता है। सो हमने 100 टाइम्स ऐड कर दिया। क्या ऐड किया है, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, सो आई प्लस 10 10 हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने अपने एरे में 10 डाला है, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 11 चला जाएगा, फिर 12 चला जाएगा, लास्ट में आई की वैल्यू 99 होगी तो हमने 109 डाला है। सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट वी हैव पुट इनटू आवर डायनेमिक एरे। साइज नहीं बताया हमने 100 एलिमेंट डाल दिए। तुम 1000 डालना चाहते हो 1000 डाल सकते हो, जितना तुम्हारा मन करे तुम उतना डाल सकते हो। डायनेमिक एरे विल हैंडल इटसेल्फ। सो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दिए, वी एडेड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स हियर। देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड साइज। वी आर प्रिंटिंग हमने कितने एलिमेंट डाल दिए। सो डायनेमिक एरे अपना साइज प्रिंट कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव एडेड इनटू योर डायनेमिक एरे। ओके, सो ऐड से क्या होता है, तुम नए एलिमेंट्स डाल सकते हो। तो मैंने 1 2 3 4, अब मैं अगर ऐड करता हूँ 6 तो वो यहाँ पर 6 ऐड कर देगा। व्हाट इफ आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू, मैं इंडेक्स 2 पे 20 डालना चाहता हूँ। सो आई नीड अ वे कि मैं यहाँ पे 20 डालना चाहता हूँ 3 की जगह। सो उसके लिए हमने ये सेट बनाया है। इंडेक्स 4 पे 10 सेट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ वैल्यू डाल रहा है। एरे के केस में तो हम ये लिख देते थे, डायनेमिक एरे में ऐसे नहीं लिख पाएंगे, बट इफेक्टिवली 4th एलिमेंट पे हम 10 डाल रहे हैं। सो इट टेक्स द इंडेक्स एंड द वैल्यू। और क्या बना रहे हैं हमने एक गेट बनाया है। मेरे को पता करना है यार सेकंड पे क्या रखा हुआ है, इंडेक्स 2 पे क्या रखा हुआ है, इंडेक्स 3 पे क्या रखा हुआ है। सो आई कैन डू हे डायनेमिक एरे गेट मी द वैल्यू एट इंडेक्स 3। सो वी हैव अ गेट। और क्या है, एक इज एम्प्टी है, खाली है क्या, साइज तो हमारे पास था ही। सो खाली चेक करने के लिए बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, साइज इक्वल 0 करना है। साइज 0 है तो खाली है। सो बेसिकली बस हमने एक फंक्शन बना लिया है जो बता देता है खाली है या नहीं है। इंटरनली वो कुछ नहीं कर रहा होगा, साइज को चेक कर रहा होगा 0 या नहीं है। ठीक है, सो इज एम्प्टी। एक और है रिमूव लास्ट। मेरे को लास्ट एलिमेंट को हटाना है। सो ये रिमूव करने के लिए है कि लास्ट एलिमेंट हटा दो। इसके लिए हमने एक बनाया हुआ है रिमूव लास्ट। फटाफट से देखते हैं क्या क्या फंक्शन देखे हमने। एक कंस्ट्रक्टर है, देख लेंगे डिफॉल्ट चाहिए या कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें। एक ऐड फंक्शन है, एड्स टू द एंड, एंड में डाल देता है ये। एक साइज फंक्शन है, एक सेट फंक्शन है, एक गेट फंक्शन है, रिमूव लास्ट, and then you have one more which was is empty. So you need these 7 functions. So before we look at the code, let's quickly see इसको implement कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, सो एक तो ये डेटा चाहिए जो ये एरे हम बनाने वाले हैं। सो इनिशियली मैं इसको 5 साइज का लूंगा। जब तक इसमें स्पेस है मैं इसी में एलिमेंट्स को डालता रहूंगा। जैसे इसमें स्पेस खत्म हो जाएगा मैं 10 साइज का बना के इन 5 को यहां कॉपी करूंगा एंड 6th एलिमेंट जो है उसको यहां पे डाल दूंगा और अपने डेटा को बोलूंगा नहीं नहीं यहां मत देख, ये देख, ये नया डेटा है मेरा। ओके, सो आई नीड दिस डेटा एरे एंड आई एम गोइंग टू डू दिस डबल द साइज कॉपी ऑपरेशन whenever I am out of size, out of space. Okay, that is one thing. Second,
मेरे पास एक ये डेटा एरे है, तुमने बोला यार ऐड करियो 5। बाय डिफॉल्ट एरे में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एरे में सब जगह पे 0 होता है, तुमने बोला 5 ऐड कर दो। सो 5 कहाँ पे रखूँ, अभी तक तो कुछ था नहीं तो यहाँ रखूंगा 5, सो मैं इस 0 को 5 कर देता हूँ। फिर अब किसी ने बोला 6 डाल दो, सो आई नीड टू नो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा। अब यहाँ तो जा चुका है, यहाँ पे जाएगा ना, सो मेरे को यहाँ पे डालना है। सो आई नीड टू नो वेयर इज द नेक्स्ट एलिमेंट गोइंग टू गो, सो आई एम गोइंग टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इंडेक्स। देखो ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने 5 डाला फिर 0 डाला, अब अगर कोई बोल रहा है 6 डालो तो यहाँ जाना चाहिए ना, यहाँ पे जाना चाहिए, 0 रहना चाहिए बीच में। सो आई नीड टू नो वेयर इज द नेक्स्ट एलिमेंट गोइंग टू गो, सो आई नीड दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। बाकी पूरी डिटेल बाद में देखते हैं। लेट्स क्विकली look at the code. I'm going to clear this off. So let's look at the code and see क्या चल रहा है यहाँ पे। Okay, so as I said, we have an array which is going to store all our data, and we have a next index. This is going to tell us कि data हमारा store कहाँ पे करना है। सबसे शुरू में कहाँ पे डालना है next index? 0 पे, जो भी पहला एलिमेंट आएगा उसको 0 पे डालेंगे, so next index initially 0 होगा। See, when you are going to have an array, एक array बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एरे बनाने के लिए ये लिखना पड़ता है, न्यू इंट, तब एरे बनता है। अगर तुम सिर्फ इतना लिखोगे तो क्या होगा? सो हमें बेसिकली सिर्फ एक रेफरेंस स्टोर करने के लिए जगह बन गई है, ये कहीं पॉइंट नहीं कर रही है अभी। सो डेटा बन गया है, एक्चुअली एरे नहीं बना है, ये नहीं बनाया अभी तक। सो हमें ये एरे बनाना है। सो ये एरे हम कहाँ बनाएंगे? हम अपने कंस्ट्रक्टर में बनाएंगे। So data is equals to new int 5 and next index is 0. So हमने इनिशियलाइज कर दिया इनको ढंग से। नेक्स्ट इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी 0 होगा, बट जस्ट टू बी एक्सप्लिसिट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, मैंने 0 कर दिया इसको। So the next element that is going to come is going to go to 0. Okay, great. So अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं which is size. अगर मेरे पास एक एरे है और मेरा नेक्स्ट इंडेक्स 3 है, जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है वो 3 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 3rd पे जाएगा, तो मेरा साइज कितना हुआ? अभी मेरे एरे का साइज कितना हुआ? नेक्स्ट 3 पे जाएगा, तो अभी तक जितने भी है वो कहाँ कहाँ पे हैं? 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे नहीं है, 0 1 2 पे है। साइज कितना हुआ? 3। नेक्स्ट इंडेक्स अगर 5 है तो 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, सो 5। सो बेसिकली साइज शुड जस्ट रिटर्न नेक्स्ट इंडेक्स। शुरू में नेक्स्ट इंडेक्स 0 है तो शुरू में साइज भी 0 है। This is telling us what is the number of elements that the user has added into our data. Okay? Add देखें अब, add में क्या होगा? मेरा एरे है, अगर इसमें स्पेस है फिर तो ऐड कर दो, अगर स्पेस नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड काम है, फिर हमें बेसिकली कुछ करना पड़ेगा, फिर हमें डबल करके काम करना पड़ेगा। ओके, सो बस वही हमने इसमें किया हुआ है। इफ यू वांट टू आस्क मी टू ऐड एलिमेंट, by default I am doing data next index is equal to element, दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट पे एलिमेंट को डालता हूँ, नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को डालता हूँ और नेक्स्ट इंडेक्स को प्लस प्लस कर देता हूँ। दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, बट थिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग व्हेन नेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ। अगर नेक्स्ट इंडेक्स डेटा डॉट लेंथ है तो एरे भरा हुआ है पूरा, यहां पर नहीं डाल सकते, हम यहां पर नहीं डाल सकते। Okay, so basically what I'm saying is let's restructure. So we have made a function called restructure, and we call this when the array is full and you want to add something to the end. उस point पे हम restructure call करते हैं। ठीक है, चलो restructure देख लेते हैं। restructure क्या करता है? It's a private function. You don't want anybody else from outside to call your restructure function. ये तो हमने internally अपनी help के लिए बनाया है। ठीक है, so restructure function देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है? बेसिकली हमारे पास एक डेटा है, हमें इसको डबल करना है, हमें इनको यहां पे कॉपी करना है ना। तो मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने एक और रेफरेंस बनाया टेम्प, एंड टेम्प इज पॉइंटिंग हियर, दिस इज द फर्स्ट लाइन। int temp array is equal to data, so temp is pointing towards data, wherever data is pointing temp is pointing to the same thing। फिर हमने क्या किया,
देन आई क्रिएटेड डेटा इज इक्वल्स टू न्यू int data डॉट लेंथ इंटू 2. सो डेटा की लेंथ यहाँ पे 5 थी ना, डेटा की लेंथ 5 थी, तो मैंने 10 साइज का बनाया एक नया एरे, न्यू int data डॉट लेंथ इंटू 2. फिर डेटा को यहां की जगह यहां पॉइंट कर दिया. So what I'm making sure is that somebody is referring to the old array as somebody is also referring to the new array. दोनों का रेफरेंस चाहिए मुझे, मेरे को दोनों पे कुछ करना है. ठीक है, इसको हटा देते हैं. So मैंने क्या किया, मैंने डेटा को नीचे पॉइंट करा दिया. अब क्या करना है, इनको नीचे कॉपी करना है. So we have a for loop which goes from 0 till temp's length and copies the data into data array from temp. डेटा से टेम्प में हमारी चीज़ें कॉपी हो रही हैं. सो हम यहाँ से यहाँ पे चीज़ें कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया. ग्रेट. सो ये हमारा रिस्ट्रक्चर हो गया. अगर तुम यहाँ पे जाओगे और देखोगे तो देखो क्या होगा. इनिशियली जब हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो 5 साइज का बनेगा, फिर हम 100 एलिमेंट्स डाल रहे हैं. सो 5 एलिमेंट तो डल जाएंगे पहले, 6th डालना होगा तो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, फिर से 6 से 10 तक डल जाएंगे, 11 डालने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग होगी, 20 तक डल जाएंगे, फिर रिस्ट्रक्चरिंग होगी 40, फिर रिस्ट्रक्चरिंग होगी 80, फिर रिस्ट्रक्चरिंग होगी 160 साइज का बनेगा. अब हमारे 100 के 100 एलिमेंट्स इसमें जा पाएंगे. सो ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग होगी. उसके बाद मैं इस कोड में क्या कर रहा था, मैं साइज प्रिंट करके देख रहा था. फिर मैं क्या कर रहा था, मैं 4 वाला जो मेरा एलिमेंट है उस पर 10 रख रहा था, वैल्यू चेंज कर रहा था. फिर मैंने दोनों को प्रिंट करके देखा. फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, जब तक डी एम्प्टी नहीं हो जाता, डायनेमिक एरे एम्प्टी नहीं हो जाता, लास्ट को रिमूव करो, साइज प्रिंट करते रहो. लास्ट को रिमूव करो, साइज प्रिंट करते रहो. एक बार रन करके देख लेते हैं इसको पहले. So we are printing a lot of stuff. Let's go to the top. So first of all, हमने साइज प्रिंट किया तो 100 आ गया. हमारे डायनेमिक एरे का साइज 100 है. 100 एलिमेंट्स डाले थे ना 0 से 99 आए के लिए, सो 100 एलिमेंट्स है. फिर हमने क्या किया, फिर हमने 4 पे 10 सेट कर दिया था. इंडेक्स 3 पे क्या है, इंडेक्स 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 + 10 13 डाला होगा, सो 13 आ गया. इंडेक्स 4 पे क्या है, पहले 14 था बट हमने चेंज करके उसको 10 कर दिया था, तो 10 आ गया. फिर जब तक एम्प्टी नहीं है हम लास्ट को रिमूव कर रहे हैं, साइज प्रिंट कर रहे हैं. साइज 100 था, लास्ट रिमूव हो गया, वो प्रिंट कर दिया, साइज 99 रह गया है. 108 आया, 98 रह गया है. करते करते इन दी एंड लास्ट एलिमेंट 10 बाहर आएगा एंड योर साइज विल बी 0. ठीक है, ये चल रहा है. चलो लेट्स गो बैक टू आवर कोड इन डायनेमिक एरे. सो हमने ऐड देख लिया, हमने रिस्ट्रक्चर देख लिया. अब सेट देखते हैं. सेट इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग. सेट थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सो सेट के अंदर हमें क्या करना होगा. See, so basically when you have an array, let's say मैंने इतना fill किया हुआ है इसको, ठीक है. So if that means let's say this is size is 10 and हमने 7 तक डाल दिया है. So index 7 तक डाल दिया है, index 8 और index 9 पे कुछ नहीं है. ठीक है. Okay, so we have already seen the constructor, size, add, restructure भी हमने देख लिया. ठीक है. So we have already seen the restructure function as well. Now let's look at set. So set भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ठीक है. So set को देखते हैं एक बार अच्छे से. See, so when you have this data array, let's say this is of size 10, and let's say I have added elements till index 6. Index 7, 8 और 9 पे कुछ नहीं डाला है. Index 6 तक मैंने सब कुछ डाल दिया. Now a user, if they call that they want to set something on index 2, let's say they want to set index 2 be 20. So 2 पे कुछ रखा हुआ था, हम 2 पे जाएंगे 20 कर देंगे. That is great, absolutely fine, right? So index 2 पे वो 20 कर देंगे. What if they tell you that hey, I want to set in index 15 a value of let's say 25. Index 15 पे कुछ रखना चाहते हैं. देखो यूजर को नहीं पता है कि इंडेक्स, यूजर के हिसाब से डायनेमिक एरे क्या है, वो कितने भी एलिमेंट डाल सकता है. जो भी बंदा हमारा डायनेमिक एरे यूज कर रहा है वो डायनेमिक एरे में कुछ भी डाल सकता है, कितने भी एलिमेंट्स डाल सकता है. डू यू वांट टू अलाउ दिस?
इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको डबल करना पड़ेगा साइज को, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज डालनी पड़ेंगी डिफॉल्ट, फिर हम इंडेक्स 15 पे कुछ स्टोर कर पाएंगे। दोबारा देखते हैं, देखो जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो यहाँ पे जाके ऐड कर देता है, पीछे एक एलिमेंट पीछे ऐड कर देता है। अब तुम क्या कह रहे हो सेट के अंदर, डू यू वांट टू अलाउ कि यूजर ने इंडेक्स 4 तक डाला है, अब अगर मैं ऐड यूज करूंगा तो इंडेक्स 5 पे जाएगा, जस्ट पीछे लग जाएगा। डू यू वांट टू अलाउ द यूजर टू से हे इंडेक्स 15 पे कुछ डाल दो, जबकि उसने तुम्हें बताया ही नहीं है 5 से लेके 14 तक क्या डालना है। यू हैव नो क्लू व्हाट शुड गो एट इंडेक्स 5 to 14. So do you change anything? Do you just go to let them put at 15? So what do you do with values from 4 to 14? नहीं करते allow, ठीक है, allow नहीं करेंगे। So what we are going to do is we are going to allow the user to set anything which has already been added, or set it one value just after where we are right now. So अगर वो next index पे डालना चाहता है तो we are okay with it. Next index मतलब just बाद में डालना चाहता है। Less than equal to next index, absolutely okay. यहाँ पर कहीं पे बोलेगा तो हम नहीं डालने देंगे, बीच की वैल्यूज पहले डालो फिर तुम उसके बाद यहाँ पे कुछ डाल सकते हो। सो ऐसे हम सेट को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, सो अगर तुम सेट को देखोगे, सो व्हाट वी आर सेइंग इज इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन नेक्स्ट इंडेक्स रिटर्न, कुछ मत करो, इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा है, कुछ मत करो, यू जस्ट रिटर्न, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स से छोटा है तो मैं डेटा इंडेक्स इज इक्वल टू एलिमेंट कर देता हूँ। बेसिकली what we are saying here is, let's say this is next index. If you want to add here, I am just going to use the add function that we have built up. ऊपर वाले add function को use कर लेंगे अगर कोई यहाँ पे डालना चाहता है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि वो चेक कर लेना कि अगर array का साइज खत्म हो गया है, next index यहाँ पर है, तो वो restructure कर लेगा अपने आप। Add will handle that. So if you want to add to next index, we are going to, if you're going to call set for next index, we are going to just call the add function because it's going to exactly do that. It's exactly going to do that. इससे पहले कहीं चेंज करना है तो बहुत आसान है, हम उठा के डेटा इंडेक्स को एलिमेंट के बराबर कर देंगे, जिस इंडेक्स पे तुम डालना चाहते हो वहां पे हम डाल देंगे। So we have basically taken 3 cases. This is my array. Let's say I have element still here. Let's say this is next index. यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे डालोगे मस्त है एकदम, डाल लो। यहाँ पे अगर तुम डालोगे तो हम इफेक्टिवली ऐड फंक्शन तुम्हारे लिए कॉल कर देंगे और वो अपना काम कर लेगा। सो दैट्स द 3 केसेस दैट आई हैव रिटन हियर एज वेल। सो दिस इज माय सेट फंक्शन। ओके, ग्रेट। बाकी सब बहुत आसान है, गेट में कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई मुझे कुछ गेट करने के लिए बोलता है, मान लो नेक्स्ट इंडेक्स 6 है, वो बोलेगी यार 7 वाला गेट करियो, 7 पे तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा, 6 पे बोलेगा, 6 पे भी कुछ नहीं है। सो लेस देन नेक्स्ट इंडेक्स इज ओके, एनीथिंग ग्रेटर इज नॉट ओके। गेट में हमने क्या किया हुआ है, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट इंडेक्स, आइडियली वी शुड एरर आउट, बट वी आर रिटर्निंग -1 फॉर नाउ। एरर आउट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद इसको ठीक कर लेंगे। अभी के लिए वी आर जस्ट रिटर्निंग -1 ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट इंडेक्स। इक्वल टू नेक्स्ट इंडेक्स मतलब ये भी एलिमेंट हमारे पास है नहीं है, अगर तुम हमसे इसके बारे में पूछोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसका। ग्रेट, अदरवाइज विल जस्ट रिटर्न डेटा इंडेक्स। कूल, इज एम्प्टी, वेरी इजी फंक्शन। इफ साइज इज 0 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। साइज इज 0 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सो इज एम्प्टी बहुत ही आसान फंक्शन है, वो हमने देख लिया। चलो अब रिमूव लास्ट देख लेते हैं। सो रिमूव लास्ट बेसिकली व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज, लेट्स से आई हैव एलिमेंट स्टिल हियर, यहां तक मेरे लास्ट एलिमेंट है, दिस इज माय नेक्स्ट इंडेक्स। सो रिमूव लास्ट को क्या करना चाहिए, इस एलिमेंट को रिटर्न करना है हमें, एंड नेक्स्ट इंडेक्स यहां आ जाना चाहिए बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा स्पेस नाउ। So we will move next index
a little back and we'll return the value present at the last place. ये करेंगे. Before we can do that, we will just make a small test that there is actually a last value. Size अगर 0 है तो return -1 ही करेंगे ना. So अगर size 0 है तो we'll return -1. Error out करना चाहिए, error out हमें करना नहीं आता है अभी. So we'll return -1 for now. We'll store the value, जो भी वो value है वहाँ पे 0 रखेंगे, next index को पीछे लाएंगे और उस value को जो पुरानी value थी उसको return कर देंगे. That's our remove last. That's basically how you're going to create your dynamic array class. It's an amazing class to have because now I don't have to worry about array size. I'll just create a dynamic array. जितने भी element डालने डालते रहो. वो dynamic array अपने आप खुद को dynamically change करता रहता है. Dynamically वो खुद को change करता है. इसका size dynamic है. Space कम रह गया, size बढ़ा लेता है अपना वो और अपने आप manage कर लेता है सब कुछ. Okay? There is exactly a similar class to this one which is inbuilt for us as well. It's called ArrayList. Okay, so you can check out if you want to. It's an ArrayList class which does almost the same work as we are doing here. Thank you.